Hello students, welcome back to my class Birds of Wisdom. So today we are going to study the third chapter of Rainbow, A Pinch of Snuff. Rainbow, a book from English Bihar Board, class 12th. So the story has been authored by Manohar Malgaonkar, an English author. This is his short story. He was actually a novelist and many other writings he has written, but he has written a number of short stories as well. So it is one of his short stories, A Pinch of Snuff. Manohar Malgaonkar was an army officer as well, and he was a civil servant and farmer also. And he had a mine as well. So the story is very much humorous one. Readers really enjoy the story. The protagonist of the story, who is the maternal uncle of the author himself, was a very witty and humorous person. He used to cook up the stories, and in any situation he want to accomplish his task in any condition, for which he is every time ready even to tell lies, which actually the author did not like much. But the character is very much humorous one. Protagonist, who is actually called the Nanu Kaka of the author, who is actually the maternal uncle of the author. So the story is so much interesting that the readers also keep on connecting themselves with the story, because they want to know what is the next action of Nanu Kaka that he is going to take to accomplish his task. So let us start this beautiful story, A Pinch of Snuff. A Pinch of Snuff. Mother's announcement shook me. Nanu Kaka is coming, she said. Oh my God, I said. Couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? No dear, Mother said. He must be already on the train. Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for months, for more than 2 or 3 days. What is he coming to Delhi for? In this heat. He wants to see some minister. What? That means he will be here for weeks. Ministers don't see people for weeks, months. Oh my God. So mother's announcement shook me. Shook me here? Shocked me or surprised me. Okay. So suddenly when my mother announced me or informed me that Nanu Kaka is coming, I got shocked. She said me, यानी जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि नानू काका यानी कि मेरे मामा जी जो हैं वो आने वाले हैं, तो मैं अचानक से घबरा गया. Oh my God, I said, couldn't we send him a wire? मैंने कहा कि क्या हम उनको वायर नहीं भेज सकते कि मैं यहाँ से ट्रांसफर्ड हो गया हूँ या फिर कहीं और चला गया हूँ. वायर्ड मीन्स टेलीग्राम. सो यू नो टेलीग्राम पुराने टाइम में क्या, पहले इतना ज़्यादा ये हमारे मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो लोग हैं यानी कि अचानक से ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाता था या एक्सीडेंट हो जाता था, ठीक है, तो तुरंत लोगों को इन्फॉर्म करना होता था. फ़ोन भी जो होते थे वो हर घर में नहीं होते थे, तो क्या करते थे लोग, टेलीग्राम के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म करते थे. ठीक है, तो टेलीग्राम तुरंत ही सडनली एक ही दिन के अंदर पहुंच जाता था. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं कि ओ माय गॉड. मैंने कहा ओ माय गॉड, क्या हम लोग नानू काका को टेलीग्राम नहीं कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, या मैं यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र हो गया हूँ या कहीं और चला गया हूँ. मदर सेड नो डियर, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन. माँ ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही ट्रेन में चढ़ चुके होंगे. बिसाइड्स शी एडेड रीअश्योरिंगली. रीअश्योरिंग मीन्स reassured me again. सेकेंड थिंग यानी कि एक तरीके से मुझे उन्होंने सांत्वना दी कि चिंता की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है.
He says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. वो उन्होंने पहले से ही कह रखा है कि वो यहाँ पर उनको रहना पसंद भी नहीं है, तो यहाँ पर 2 या 3 से ज़्यादा रहने वाले 2 या 3 दिन से ज़्यादा रहने वाले भी नहीं हैं. What is he coming to Delhi for in this heat? इतनी गर्मी है इस वक्त दिल्ली में, और इतनी गर्मी में वो आ क्यों रहे हैं? He wants to see some minister. What? That means he will be here for weeks. तो जो ऑथर है उनकी माँ ने उनको इन्फॉर्म क्या किया कि वो यहाँ पर कोई मिनिस्टर वगैरह हैं तो उनसे मिलने आ रहे हैं. तो इस पर जो ऑथर है वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोल रहे हैं कि मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, एंड मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स. ओ माय गॉड, मिनिस्टर लोग तो किसी भी व्यक्ति से कई दिनों तक नहीं मिलते हैं, महीनों बीत जाते हैं, वीक बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, वो नहीं मिलते हैं. तो इसका मतलब वो यहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम तक रहने वाले हैं. If your Nanu Kaka wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night. So now his mother again assures him or reassures him that he must not worry, he should not get worried, because his Nanu Kaka himself doesn't want to stay here much. Besides, he is a very we can say very smart personality. If he wants to meet anybody anyhow, he manages himself to meet the person. Okay, he is very much able to deal with the situation, with every kind of situation. Okay, so that is why वो बोल रहे हैं कि नानू काका, तुम्हारे नानू काका अगर वो चाहे ना तो किसी भी वो दिन का कोई भी वक्त हो, चाहे वो दिन हो या रात हो, अगर उनको किसी से मिलना है तो वो मिल करके ही रहते हैं, चाहे फिर वो कोई और हो या फिर कोई मिनिस्टर हो. Mother has always been very loyal to her side of the family, and after all, Nanu Kaka is her brother. I, on the other hand, may have something of a complex about ministers. I am an undersecretary on prohibition and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step ahead, 1 step higher. So the author is saying that कि मदर यानी वो अपनी माँ के लिए बोल रहे हैं, या ये कहना चाहिए लाइन सभी लेडीज़ के लिए बोल रहे हैं कि जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी जो मदर साइड होती है, मदर साइड की जो फैमिली होती है उनके प्रति बहुत ही लॉयल होती है. लॉयल होती है तो रहना भी चाहिए, है ना. ठीक है, तो मदर हैज़ ऑलरेडी यानी कि मेरी माँ जो है वो अपने हमारे जो ननिहाल है मेरा, उनके प्रति हमेशा ही लॉयल रहती हैं. तो ये सिंपली कहना चाहते हैं कि वो उनकी बुराई सुन नहीं सकती हैं. ठीक है, और बाकी रही मेरी बात, तो नानू काका इज हर ब्रदर, तो और वैसे भी हो भी क्यों ना, वो तो उनके भाई हैं. और बाकी रही मेरी बात, तो मेरा जो ये जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके प्रति मेरे जो राय है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है. और मैं भी अभी मेरी जॉब लगी है, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ एंड ऑन प्रोबिशन, वो भी मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा हूँ. और हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको क्या है, ईश्वर से भी 2 कदम आगे ही रखना है. द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं वो बस 1 स्टेप ही हायर है. यानी कि हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग में ऐसे सिखाया जाता है कि जो मिनिस्टर वगैरह जो है वो कॉमन लोगों से गॉड से भी उनको 2 कदम आगे रखा गया है, और हमको उन मिनिस्टर से 1 कदम नीचे रखा गया है. यानी कि सेक्रेटरीज जो है उन लोगों को उन मिनिस्टर से 1 कदम नीचे रखा गया है. यानी कि हम लोगों की ये बच्चों किया गया, यानी कि हमको ऐसे समझाया गया है कि हमें लोगों को अपने सामने ऐसे शो करना है कि हम कोई भगवान से कम नहीं हैं, तो हमसे इतना मिलना इतना आसान नहीं है. I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood in the doorway of a second-class carriage, a striking figure, white-haired, with an impressive moustache. He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagdi of the Dakkani Brahmin, and drapes a white angocha round his shoulders.
So now in this extract, in this part or in this paragraph, the author is trying to show us the personality of his Nanu Kaka, who is his maternal uncle. So he is saying, I was waiting on the platform. मैं काफ़ी देर से प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा था, तब जाकर के ट्रेन आई. नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज. मैंने क्या देखा कि नानू काका जो है वो सेकेंड क्लास के कैरेज के दरवाजे पर, डोरवे पर ही खड़े हैं. अ स्ट्राइकिंग फिगर, अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मॉइस्चर. उनकी वाइट हेयर थे और बड़ी ही इम्प्रेसिव मूछें थी. He still wears the old fashioned knee length black coat. यानी कि वो अभी भी उनका जो पुराना सा ओल्ड फैशन जो कोट था, जो कि क्या है घुटनों तक आता था, वो नी के मतलब हाँ नी की लेंथ के बराबर उनका जो कोट था वो उन्होंने पहना हुआ था, जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन था. लेकिन वो उसको कभी छोड़ते नहीं थे, हमेशा उसको पहनते थे. और उसके अलावा रेड सिल्क पगड़ी पहनी हुई थी, जो कि दक्कनी ब्राह्मण की स्टाइल में थी. ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा राउंड द shoulders. Now drapes, see, drapes has two meaning. One is wrap, लपेटना, and then hang. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं. दूसरा, उन्होंने एक अंगोछा था, वो अपने वो कंधों पर ओढ़ा हुआ था, ठीक है, या हैंग किया हुआ था. तो दिस वॉज द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर्स मैटरनल अंकल. As I went up, he handed me a basket. Take this out quick, he whispered. I'll join you outside the station. So as soon as he notices me, the author is saying, as soon as he notices me, he says, he said suddenly, take this out. यानी उन्होंने मुझे क्या है एक बास्केट पकड़ा दी और फिर धीरे से बोले, I will join you outside the station. तुम जल्दी चलो, मैं अभी बाहर, स्टेशन के बाहर मैं तुमसे तुरंत ही मिलता हूँ. I asked no questions. I tucked the basket under my arm and turned. Only a bump into an enormous Marwadi woman who had her head covered in a burqa. But my apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket. The protest of an outraged kitten. Spit stops, mew, mew, mew. Now the author is telling us that I asked no question. मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. मैंने बास्केट बस हाथ में ली और अपने हाथों के नीचे, अपनी बाह के नीचे दबा दी और मैं आगे बढ़ने लगा. तभी अचानक से क्या हुआ, एक बहुत ही इनॉर्मस मीन्स क्या होता है नॉर्मली वास्ट, यहाँ पर यानी कि बहुत ही हेल्दी हट्टी खट्टी सी एक बड़ी सी मोटी सी एक लेडी थी, जिससे मैं अचानक से बम्प इंटू इनॉर्मस मारो, यानी कि मैं अचानक से उसे टकरा गया. हु हैड हर हेड कवर्ड इन बुरका, जिसने अपने बुरके में अपने हेड को कवर किया हुआ था. बट माई अपॉलॉजीज, और जैसे ही मैं उनसे टकराया तो मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी. आई अपोलाइज, यानी कि मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन वर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट. Apologies as means sorry or to ask sorry. Okay, so the author is trying to say here that as soon as I asked sorry from the woman, suddenly I found that my voice was drowned here means faded. ओके, यानी वो ये कहना चाह रहा है, जैसे ही मैंने उन लेडी से माफ़ी मांगने की कोशिश की और मैंने माफ़ी मांग भी ली, कि इतनी देर में क्या हुआ कि ड्राउन का मीनिंग क्या होता है, वैसे तो सिंक होता है डूबना, लेकिन यहाँ पर फेडेड है. ठीक है, कि मेरी जो आवाज़ें थी वो अचानक से कुछ और आवाज़ें आ रही थी, जिसमें अचानक से क्या है वो गायब हो गई या दब करके रह गई. और वो जो आवाज़ थी कैसे थी, ऐसे लग रहा था बाय द स्ट्रेंज साउंड इमिनेटिंग. इमिनेटिंग का मीनिंग क्या हो गया, एक तरीके से सेंसेशनल साउंड. सेंसेशनल साउंड का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई अचानक से
कोई हमें बुला रहा है या कुछ ऐसे कुछ स्प्रेड आउट हो गया है, कुछ ऐसा लगता है ना कि आँख फैल गई है, मैंने आपने आँखों से भी कुछ भी देखा नहीं है, आपने प्रॉपरली किसी चीज़ को सुना नहीं है, लेकिन आपको ऐसा एहसास हो रहा है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई हमको बुला रहा है या कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, आप पूरी 100% श्योर नहीं हो अभी तक, ठीक है। तो इस तरीके की साउंड्स को या सेंसेशनल फीलिंग हम कह सकते हैं। साउंड एक्चुअली यहाँ पर साउंड से मतलब है इसीलिए, नहीं तो सेंसेशनल फीलिंग कि कुछ ना कुछ क्या है, बाहर कुछ भी स्प्रेड आउट हो रहा है, या किसी के गूंजने की आवाज़ आ रही है, किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, कोई हमें बुला रहा है, इस तरीके का। तो जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जब उस मारवाड़ी वुमेन से अचानक से टकराया तो मैंने उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, मैंने उनसे माफ़ी मांगी भी, लेकिन मेरी जो आवाज़ थी अजीबोगरीब सी आवाज़ के बीच में अचानक से दबकर रह गई। और मैंने अचानक से वहाँ क्या देखा कि एक किटन थी जो कि बहुत तेज, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत गुस्से में थी और जोर जोर से फिर वो चीखने लगी, म्याऊं म्याऊं ऐसे करने लगी। यानी उस बास्केट में ऑथर ने क्या देखा कि वहाँ पर एक किटन था, किटन यू नो यंग वन ऑफ द कैट, ओके। तो that is why now the author again got shocked and he says further, I ducked and ran, mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party. He says, I ducked. Ducked means quickly jumped. Quickly jumped or jumped quickly. Okay, देखिए अब जम्प डक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्ट? डक्ट का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू सी एनीबडी हु इज ट्राइंग to give you a strong blow, okay, and when you try to escape, okay, when you try to escape from that blow, that action is called duck actually, ठीक है। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है, हम सीधे चल रहे होते हैं तो अचानक से कोई डोर आ जाता है तो फिर एकदम से हम नीचे हो जाते हैं, नीचे होकर के निकल जाते हैं, सो दैट एक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डक्ट, ओके। एंड इन द सेम वे डिपिंग, व्हेन the action of dipping, we can say the action of dipping is also called duct, okay, duck, okay। तो इस तरीके से डक के अलग अलग मीनिंग होते हैं। सिंपली टू save yourself by taking a quick jump is called duck, ओके। इसका एक बहुत ही सिंपल सा आपको अगर हम एग्जांपल दें तो देखिए, कई बार क्या होता है कि मॉस्किटो आता है आपके सामने, ओके। तो मॉस्किटो जैसे आया तो आपने उसको क्या ऐसे हिट करने की कोशिश की, उसको ऐसे अटैक करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, मॉस्किटो क्या होता है एकदम से जंप करके वहां से निकल जाता है, ओके। सो दैट एक्शन ऑफ मॉस्किटो इज कॉल्ड डक्ट, ओके, और डकिंग। सो आई डक्ट, तो एकदम से क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उस किटन को देखा, मैं अचानक से अपने आप को, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे हिट करने की कोशिश करेगी, तो इसलिए मैं अचानक से मैं क्विकली जंप किया और मैं वहाँ से भाग गया। और अचानक से मिंगल्ड मीन्स मिक्स्ड अप, मिंगल्ड मीन्स मिक्स्ड अप, मैं अचानक से उस भीड़ के बीच में मिल गया। एंड स्क्वीज्ड थ्रू, स्क्वीज मीन्स स्क्वैश, स्क्वैश मीन्स क्रश, टू क्रश, यानी कि एकदम से ऐसा लगा कि पूरी की पूरी तरीके से वहां से सामने से एक सिख मैरिज पार्टी आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसमें पूरी तरीके से कुचल गया या दब गया। नानू काका was long time coming. The station yard was nearly empty and the last Tonga had gone when he emerged, escorted by a fawning ticket inspector. नाउ नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, यानी कि मुझे स्टेशन के बाहर काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया खड़े खड़े, और लेकिन मैंने क्या देखा कि नानू काका अभी तक नहीं आए थे और स्टेशन भी लगभग खाली ही था। और जो लास्ट टोंगा जो था, मैं हम लोग उस समय टैक्सी वगैरह ज़्यादा नहीं चलती थी, टोंगा वगैरह ज़्यादा चलते थे, तो उसी की ऑथर बात कर रहे हैं कि लास्ट टोंगा जो था वो भी वहाँ से जा चुका था, तब जा कर के मैंने नानू काका को सामने देखा। एमर्ज में नॉर्मली क्या होता है, टू प्रोड्यूस, पर यहाँ पर क्या है, टू कम, लेकिन तब या टू कम सडनली, तब मैंने अचानक से देखा कि नानू काका सामने से आ रहे थे। एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग
टिकट इंस्पेक्टर, मैंने क्या देखा कि पूरी एस्कॉर्टेड यानी कि विद फुल प्रोटेक्शन, एस्कॉर्टिंग यानी विद फुल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट इस एस्कॉर्ट्स आपको पता है ना, जो बड़े बड़े जो रॉयल पर्सनालिटी होते हैं या पॉलिटिकल पर्सनालिटी होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनको उनके स्पेशल एस्कॉर्ट्स रखे जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़े से मंत्री हो और जो टिकट इंस्पेक्टर जो है वो उनके कोई एस्कॉर्ट हो, उनको बड़े प्रोटेक्शन के साथ संभाल के लेकर आ रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज ही वॉज अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। फॉनिंग मीन्स ग्रीसी, greasy, greasy, not oily hair, greasy, and the one who takes bribe. Okay, we call it bribe also. We call the person who takes bribe, who accept bribe, is called bribe. Okay, तो इतना प्रोटेक्शन के साथ वो उनको इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि वो टिकट कलेक्टर जो थे वो ग्रीसी पर्सन थे, एक ब्राइबी थे। उन्होंने नानू काका से अच्छी खासी रिश्वत ली थी, तब जैसी वजह से उनको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो 3rd क्लास की टिकट्स पे 2nd क्लास की कैरेज में ट्रैवल कर रहे थे। और फिर आकर के नानू काका मुझे एक्सक्यूज देने लगे, मुझे अपनी सफाई देने लगे। क्या कहने लगे? नो रूम इन द 3rd क्लास एंड दे वुडंट इश्यू 2nd क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। नानू काका explained as he came up to me, he had to travel 2nd on a 3rd class ticket, but it was all arranged quite amicably. Such a nice young man, the TC. You saw how he even came right out with me, so that there should be no trouble. The kitten, of course, travelled free. How is it? Now, you can see here that how smartly नानू काका is saying to him, no room in the 3rd class. यानी कि जब मैंने टिकट ली थी तो उस समय 3rd क्लास जो है उसमें कोई जगह नहीं थी, और जो 2nd क्लास की जो टिकट थी वो विदा रिजर्वेशन के लोग मुझे दे नहीं रहे थे। इसी वजह से, क्योंकि 3rd क्लास में कोई रूम नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी, तो इसी वजह से मैं 2nd क्लास में बैठ गया था और हैड टू ट्रैवल 2nd ऑन अ 3rd क्लास टिकट। एंड 3rd क्लास की टिकट पर मुझे 2nd क्लास में बैठना पड़ा। और फिर वो बोलते हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ अरेंज हो गया है एमिकेबली, यानी कि एमिकेबली मीन्स फ्रेंडली, यानी बहुत ही फ्रेंडली वे में सब कुछ अरेंज हो गया है। यानी कि उन्होंने टिकट कलेक्टर था, टिकट इंस्पेक्टर जो था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है बटरिंग कर दी थी, उसको अच्छी खासी रिश्वत खिला दी थी। इसी वजह से वो बेचारा कुछ कह नहीं रहा था, तो वो बड़े प्यार से बोल रहे थे, सब बहुत देखो सब कुछ मैटर मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत ही फ्रेंडली तरह से। सच ए नाइस यंग मैन, और बड़ी तारीफ कर रहे हैं उन टिकट कलेक्टर की। उसके बाद देख रहे मतलब बोल रहे हैं कि देखो ये टिकट कलेक्टर कितने अच्छे हैं, इन्होंने ना केवल मेरी जो टिकट है जो भी उसमें एडजस्टमेंट कर लिया, बल्कि ये जो बेचारा किटन मेरे साथ आया है उसकी भी टिकट नहीं ली, उसको भी फ्री में अरेंज कर दिया। हाउ इज इट? उसके बाद वो पूछ रहे हैं हाउ इज इट, यानी कि ये जो किटन है मेरा वो कैसा है बेचारा। वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट इज दैट आई थॉट होपफुली। द ऑथर इज सेइंग वेरी क्वाइट, बड़ा शांत सा दिख रहा है अभी तो, मुझे तो लग रहा है शायद ऊपर ऊपर चला गया, खत्म हो गया। आई थॉट होपफुली, फिर मैं मन में सोचने लगा काश ही वो चला ही जाए तो ही अच्छा। सो दिस लाइन इज एक्चुअली शोइंग द ऑथर डिडंट लाइक किटन और एनिमल्स दैट मच, सो दैट इज़ वाई ही इज सेइंग। और ऊपर से उसके ऊपर चिल्ला पड़ा था जिसकी वजह से मतलब इतनी ज़्यादा उसे परेशानी का सामना करना पड़ा था ऑथर को, इसी वजह से उसे किटन के ऊपर गुस्सा आ रहा है। We got into the car and even before I changed into 2nd gear, Nanu Kaka asked, when have you arranged for ministers to see me? Can't stay here for more than 2 days, 3 at the most.
अब इतने अभी मैंने सेकंड गियर में ही गाड़ी ली थी कि नानू काका बोल पड़े कि फिर तुमने मेरी मिनिस्टर से जो भी मीटिंग है वो अरेंज की है कि नहीं की है, कितना टाइम लगेगा। देखो मैं ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं रह सकता, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। तो तुमने अरेंजमेंट किया है कि नहीं किया। It was a time for frankness. Now the author is saying that this was the last time and now I lost my all patience and I said frankly मैंने अपने अंकल को बोला कि look uncle, I said I am merely an under secretary on probation and it is more than my job is worth to go asking for interviews with minister। तो मैंने बिल्कुल क्लियरली अपने मामा जी को बोला कि देखिए मामा जी, बात ये है कि मैं अभी अंडर सेक्रेटरी में हूँ और मेरी अभी भी जॉब लगी है और मैं अभी अंडर ट्रेनिंग में हूँ, और मेरे लिए मतलब ये मेरी जॉब के लिए और मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा कि इस वक्त मैं इस तरीके से मिनिस्टर वगैरह को ये बोलूँ कि जो भी मेरे मामा जी आए हैं या मेरे रिलेटिव्स आए हैं तो उनसे मैं मीटिंग अरेंजमेंट हमको करानी है, इस तरीके की बातें मैं नहीं कर सकता। Oh, Nanu Kaka said, I had rather hoped. Oh, I see. Well, never mind. He took a pinch of snuff, brushed his finger delicately on his angocha and sat back, closing his eyes, puckering his eyebrows as though in deep thought. He also clucked his tongue several times in a typical Deccanese way, रजिस्ट्रेरिंग पिटी। यानी उसके बाद नानू काका जो थे वो कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ मुझे इतना बोले, आई हैड रैदर होप्ड मीन्स आई हैड होप्ड दैट यू विल अकम्प्लिश मी माई डिज़ायर बट नाउ आई हैव टू डू ऑल थिंग ऑल अलोन। ठीक है, कोई बात नहीं, वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना पिंच ऑफ स्नफ दिया लिया। स्नफ इज़ अ काइंड ऑफ वी कैन से इंटॉक्सिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ओल्डर पीपल यूज्ड टू टेक, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि कुछ जो स्मेल करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कुछ स्मेल किया। उसके बाद उनका जो अंगूठा था उसकी फिंगर, उससे अपनी फिंगर पहुंची और आराम से फिर बैठ गए। एंड देन ही सेट ऑन द सीट एंड पकरिंग हिज आईब्रोज। पकरिंग यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्टेड हिज आईब्रोज, दैट मीन्स टू से जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि जैसे कई बार जो लोग होते हैं बहुत गहरी सोच में होते हैं तो उनकी भौहें जो होती है ना बहुत ही उस पर रिंकल पड़ जाते हैं, ठीक है। तो फिल्ड अप रिंकलिंग, पकरिंग मीन्स हम कह सकते हैं हिज फेस फिल्ड अप विद रिंकल्स, लॉट्स ऑफ wrinkles. That was actually a sign of deep thought. ऐसा लग रहा था, यानी उन्होंने आंखें तो बंद कर ली थी लेकिन उनके फेस में जो एक्सप्रेशंस थे उससे ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूब गए हैं। और इतना ही नहीं, he clucked his tongue. Cluck means he made different kinds of voices with his tongue. You know, to clucking means तो होता है कि जो जीप जो होती है ना, कहते हैं टंग ट्विस्टेड हम कह सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन स्पेशली in Bengal when there is a celebration of Kali Puja, many ladies used to shout with clucking their tongues. Okay, that kind of voice is called clucked. Okay, तो इस तरीके से वो अजीबोगरीब से वो क्लकिंग करने लगे, टंग से आवाज़ें निकालने लगे, जिससे क्लियरली दिख रहा था कि वो थोड़ा से क्या है, दुखी से हैं या थोड़े से सैड से हैं। Mother was waiting on the doorstep, her face wreathed in smiles. She went into sequels of delight over the kitten and made a lot of fuss over Nanu Kaka. I also found that he had installed him in my bedroom so that I had to put a charpai for myself in back veranda. ठीक है, तो पहले के टाइम में ऐसे ही होता था कि जैसे बड़े बूढ़े लोग या कोई भी मेहमान लोग आते थे तो उनको पहले रखा जाता था, उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता था, अपने आप को भी प्रॉब्लम में रख करके, लेकिन उनका खास ध्यान रखा जाता था। तो यहाँ पर बता रहे हैं ऑथर कि मेरी माँ जो थी वहीं दरवाजे पर ही खड़ी थी एंड हर फेस रैद मीन्स होता है डेकोरेट, टू डेकोरेट, यहाँ पर तो हम कह सकते डेकोरेटेड।
ओके, और वी कैन से फिल्ड अप विथ शाइन। मेरी माँ जो थी वहीं डोर स्टेप पर वेट कर रही थी और उनका जो चेहरा था वो स्माइलिंग से शाइन हो गया, ब्यूटीफुल लगने लगा और सुंदर लगने लगा जब उन्होंने अपने भाई को देखा। और वो शी वेंट इनटू सीक्वल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, और किटन को देख करके वो इतना खुश होने लगी। सीक्वल ऑफ डिलाइट मीन्स क्या था, ओवरजॉयड, टू गेट ओवरजॉयड, यानी कि वो इतना ज़्यादा ओवरजॉयड हो गई कि जैसे कि वो उनका कोई अपना कोई बच्चा हो, ठीक है, या उनका कोई अपना ही कोई रिलेटिव हो, इतना मतलब उसको किटन को प्यार करने लगी। और इतना ही नहीं, एंड मेड अ फस ओवर नानू काका, और नानू काका जो थे उनको मतलब इतना ज़्यादा उस पर ध्यान देने लगी, उनसे बात करने लगी, उनसे मतलब हालचाल पूछने लगी। ऐसा होता है ना नॉर्मली, जैसे कई बार दिन बाद हमारे कोई वो भी कोई अपना आता है ना, तो वही कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारी की सारी जो कंडीशन ऑथर जो है वो शो कर रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल, अब मैंने क्या देखा कि उन्होंने मेरा जो बेडरूम है वहाँ पर मेरे नानू काका के लिए बेड लगा दिया था, और मैं ताकि मैं अपने आप ही जा कर के पीछे वरांडा में अपने चारपाई बिछा दूँ रात को और वहीं पर सो जाऊँ। Then the author says, at mother's instance, I had taken 2 days leave from the office, and in the afternoon I drove Nanu Kaka to the North Block. He went in to see the minister and waited in the car park. It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. I didn't dare ask him what had happened and drove without saying a word. He cooled down in a little while though and said, see what happened. A mother से यानी मेरी माँ ने इंसिस्ट किया मुझे, और इसी वजह से मुझे 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। एंड इन द आफ्टरनून, दोपहर में मैं नानू काका को लेकर के नॉर्थ ब्लॉक गया, और वो वहाँ पर एक्चुअली मिनिस्टर से मिलने के लिए जाने वाले थे। तो ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वो वहाँ पर मिनिस्टर से मिलने के लिए गए। मैं बाहर ही वहीं पर कार पार्क में उनका वेट करता रहा, और उसके करीब 2 घंटे बाद जब वो लौटे तो मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, तो मैंने क्या देखा, स्वेयर वर्ड्स होता है एक्चुअली अब्यूसिव वर्ड्स, अब्यूसिव वर्ड्स। तो मैंने क्या नोटिस किया कि वो कुछ अपनी ही कोई जो उनकी मराठी लैंग्वेज थी उसमें कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज में मम्बलिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए आ रहे थे। और क्योंकि वो गुस्से में थे तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई उस समय उनसे कुछ भी पूछने की। लेकिन जब हम आगे कुछ जाने लगे तो उसके बाद थोड़ा सा वो कूल डाउन हुए, और फिर उन्होंने मुझको बोला, 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. Shameful, shameful. And there was another series of Marathi expletives. In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother tongue. So Nanu Kaka informed him that when he entered to the office, when he went to meet the minister, then what happened कि वहाँ पर वो जो चपरासी थे उन्होंने उनको यहाँ से वहाँ कई बार क्या ट्रैम्पिंग यानी मार्चिंग यानी कि राउंड लगवाए। ट्रैम्पिंग मीन्स मार्चिंग, यानी यहाँ से वहाँ जाने कितनी बार दौड़ा दिया, इस एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर की तरफ, ठीक है। उसके बाद आखिर में जा कर के सक्सीडेड इन गेटिंग डिप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, यानी कि बड़ी मुश्किल से डिप्यूटी सेक्रेटरी से वो मिल पाए ताकि उनको अपॉइंटमेंट मिले। तो अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट दी तो 3 दिन बाद यानी कि पूरे 3 दिन रुकना पड़ेगा उनसे मीटिंग के लिए। कितने शर्म की बात है। और फिर से उनको गुस्सा आ गया, एंड देन अगेन ही स्टार्टेड यूजिंग हिज एक्सप्लेटिव्स अगेन अब्यूसिव लैंग्वेज।
यानी कि फिर से क्या है वो अपनी अब्यूजिंग। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। Linguistic emergency here, the author means to say that you must have also noticed many times, let a person be highly educated or let a person know a number of languages. When it comes a matter of anger or when it comes a matter of showing anger, the person returns to his mother tongue. ठीक है, इंसान चाहे कितना भी उसको कितनी भी लैंग्वेज आती हो, जब वो गुस्से में होता है तो उसके मुंह से जो अब्यूसिव लैंग्वेज निकलती है, गुस्सा निकलता है, वो मदर टंग में निकलता है। ठीक है, तो वही ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं, मेरे अंकल जो थे लिंग्विस्टिक इमरजेंसी के टाइम में अपनी मदर टंग अपनी मराठी में पहुँच जाते थे, एंड ही यूज्ड टू अब्यूज़ इन मराठी लैंग्वेज। ओके, तो इस तरीके की आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी अकबर बीरबल की, कि वहाँ पर जो बीरबल है वो लास्ट मैसेज देते हैं स्टोरी में कि किसी भी इंसान की नेचुरल लैंग्वेज आपको पता करनी हो तो उसको गुस्सा दिलवाओ, और जब उसे गुस्सा आ जाएगा तो गुस्से में जो उसकी लैंग्वेज निकलेगी वो नेचुरल लैंग्वेज निकलेगी, वही उसकी एक्चुअल मदर टंग होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। Okay, the story is very long again, so it will take 2 or 3 days to accomplish it. Okay, so meet you soon. Till then, goodbye, and keep on making revision and keep on making the previous chapter revision as well. I have made a playlist over there, so you can move to playlist. If you have not completed those chapters, try to complete those chapters as well. Okay, and I am preparing for you quiz also, so soon I will come with quizzes also. Okay. So till then, goodbye. Take care.